Okay, so yes, hello everyone. Today we'll start a new chapter from your book Beehive, that is packing. This is a very interesting story. It has many humorous elements. So the story is written by Jerome K. Jerome, and he is describing his incident while he was doing packing with his friends, what happened with him, and what humorous elements are given in the story. That's we'll read about. So let's start with what the author here is saying. So do you like going on trips? Obviously yes, every one of us like going on trips. What kind of trips do you enjoy the most? ठीक है, some of us enjoyed adventurous trips, some of us enjoyed religious, मतलब going to religious places and all, right? How do you feel about having to pack for a trip? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need and that you can't find them easily? This happens to us many a times. जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ें चाहिए, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो पैक कर लिए, बट आफ्टर रीचिंग टू सम प्लेस, ओके, और पैकिंग करने के बाद में याद आता है कि नहीं, आई हैव फॉरगॉटन टू पैक सम थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फॉरगॉटन टू पैक माई स्पेक्टिकल्स, माई गॉगल्स, माई कैप, ओके. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. या फिर कई बारी जो बहुत छोटी सी चीज़ें जो हम मिस कर देते हैं, दैट इज आर टूथब्रश. इट हैपन्स टू अस मैनी अ टाइम्स. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर, ठीक है, एंड हिज फ्रेंड्स and their pack. ठीक है, मतलब their packing. Okay, so let's start with the chapter. I said I would pack. Here the narrator said, narrator here is about Jerome K. Jerome, and the story is about three friends, Jerome, Harris and George. This is actually an extract from the very famous novel Three Men in a Boat. आप सबने सुना होगा, ठीक है. So this is an extract from that novel Three Men in a Boat, and extract of when the people were packing. Okay, so I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. So यहाँ पे जेरोम जो है, since he is the writer, right, he said कि मैं बोलता हूँ I would pack, ठीक है, and I rather pride myself on this thing. I rather pride myself on the fact that I pride myself on my packing. पैकिंग बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ है जो मुझे किसी और दूसरे इंसान से ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है, ठीक है. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर. और वो बोलता है कि कई बार जब मैं ये चीज़ें सोचने बैठता हूँ ना, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, ठीक है, तो मुझे खुद को सरप्राइज होता है कि अरे आई एम सो परफेक्ट इन ऑल दीज थिंग्स. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. As I said, there are three people, Jerome, ठीक है, who is here writing, ठीक है, there are three persons in this chapter, Jerome, George and Harris, ठीक है. तो वो ये बोलता है कि आई इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट, ठीक है, इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन माई फ्रेंड्स, ठीक है, मैं इस तरीके से इन चीज़ों को, या इस तरीके से मैं उनको बोलता हूँ, मेरे फ्रेंड्स को, जॉर्ज और हैरिस को, और मैं उनको ये चीज़ डिफाइन करता हूँ कि बेटर होगा कि ये सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीटली तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है. दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट had something uncanny about it, and they fell into the suggestion as in fell into मतलब they immediately accepted the suggestion, ठीक है. जैसे ही मैं बोलता हूँ कि ये सारी पैकिंग वाली जो चीज़ है ये बेटर है कि तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तो ऑब्वियसली किसी पर्सन को क्या चाहिए, अगर कोई मना कर रहा है कि आप ये काम मत करो तो वो क्यों करेगा, ठीक है, कर लो दूसरे जिसको करना है. तो वो इमीडिएटली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, एंड दैट थिंग वाज समथिंग वियर्ड. अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज और वियर्ड अबाउट इट, बिकॉज George spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. जैसे ही मैं बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ मुझे छोड़ दो, तो वो इतना easily उस चीज़ को छोड़ देते हैं. And the weird thing was what, कि जॉर्ज जो है वो बड़े आराम से एक easy सी चेयर, मतलब easy चेयर जो है, comfortable चेयर जो है उसमें बैठ जाता है. हैरिस जो है वो अपने पैर जो है वो टेबल पे रखकर बहुत आराम से बैठ जाता है, ठीक है. This was hardly what I intended, ठीक है. तो he said this was hardly what I meant, ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था. तो this was hardly what I intended का मतलब ये है कि this was
हार्डली वॉट आई मेंट, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि भाई तुम बड़े आराम से बैठ जाओ. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh you here, let me do it. ठीक है? What I meant was कि जॉर्ज और हैरिस जो हैं वो मेरे सुपरविजन के अंदर काम करें. ठीक है, और आई मेंट टू बॉस द जॉब, आई जस्ट वांट टू सुपरवाइज द जॉब. और जॉर्ज और हैरिस जो हैं दे एक्चुअली शुड पॉटर अबाउट अंडर माय डायरेक्शन. पॉटर अबाउट एज इन कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट सी जो चीजें हैं वो मेरे डायरेक्शंस के अंदर काम करें. ठीक है, मतलब मैं बोलूँ इसको यहाँ ऐसे रखो तो वो ऐसे रखें. ठीक है, एंड आई वांट टू बॉस लाइक दिस, ओ यू हेयर लेट मी डू इट, ये वाला काम मुझे करने दो. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मुझे करने दो, जो दूसरे काम है वो तुम करो. तो मेरे कहने का ये मतलब था. लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो ये सारी चीजें छोड़कर बड़े आराम से बैठ जाते हैं. ओके, there you are, simple enough, really teaching them, as you might say. So I wanted to boss the job, I wanted to superintend the job, okay, and I wanted to give both of them instructions. Okay, they are taking it in the way they did irritate me. और उन्होंने जिस तरीके से मेरी बात को लिया था, जैसे मैंने बोला कि let me do it, तो उन्होंने जिस तरीके से मेरी बात को लिया कि वो बड़े आराम से सारा काम छोड़कर बैठ गए, that thing irritated me. Okay, there is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. तो इतनी ज़्यादा चीज़ मुझे कोई सी भी irritate नहीं करती जितना मुझे ये चीज़ irritate करती है कि दूसरा पर्सन जो है वो बड़े आराम से बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा और मैं काम कर रहा हूँ. तो दैट थिंग इरिटेटेड मी अ लॉट. I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. और वो कहता है कि वो अब एक इंसिडेंट बताता है कि मैं एक बार एक ऐसे पर्सन के साथ में रहता था जो मुझे इसी तरीके से मैड किया करता था. मैड यानी परेशान किया करता था या मुझे इरिटेट किया करता था. ठीक है, ही वुड लॉल ऑन द सोफा, लॉल एज इन लाई ऑन द सोफा. वो बड़े आराम से सोफे पे बैठ जाता था और मुझे काम करते हुए देखता रहता था घंटों तक. तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी. He said it did him real good to look at me messing about. और वो ये कहता था कि मुझे बड़ा मजा आता है तुम्हें इस तरीके से काम करते हुए, परेशान जब होते हो ना तुम, उस तरीके से मुझे तुम्हें देखने में बड़ा मजा आता है. वो पर्सन ऐसे बोलता था. ठीक है, now I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend and walk round with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. ठीक है, सो कहते हैं कि now I'm not like that. मैं उस पर्सन की तरह नहीं हूँ. I can't sit still. ठीक है, मैं एक जगह बिल्कुल स्टिल होके नहीं बैठा रह सकता जब दूसरा पर्सन जो है वो काम कर रहा है. स्लेविंग का एक्चुअली मतलब होता है जो एक सर्वेंट की तरह काम कर रहा है. ठीक है, so I cannot sit still on a sofa and I cannot watch another man while the person was working. Okay, I wanted what? I just want to superintend the job. Superintend means, again, I want to boss the job, I want to supervise the job and walk around in my hands in my pocket and tell them what to do or what not to do. This is my energetic nature and I can't help it. तो जेरोम ऐसे बोल रहा होता है कि मेरा यही नेचर है and I can't help it. Okay, next is, however, I did not say anything. ठीक है, तो जब जॉर्ज और हैरिस जो है ऐसे बैठ जाते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता. I did not say anything but started the packing. लेकिन पैकिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. ठीक है, अब जितना मैंने सोचा था वो उससे ज़्यादा टाइम ले लेता है. मतलब मैंने सोचा, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि अरे पैकिंग ही तो करनी है, थोड़ा सा सामान ही डालना है, मुश्किल से आधा 1 घंटा लगेगा. तो जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है पैकिंग करने में. बट फाइनली I got the bag finished at last. ठीक है, and I sat on it and I strapped it. अब बेसिकली हमारे साथ कई बारी होता है, हम सूट केसेस पैक करते हैं और उसमें सामान जो है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा भर लेते हैं हम ऑब्वियसली. तो क्या करना होता है, हम उस पर बैठ के उसको बंद कर रहे होते हैं. तो वैसे ही वो कहता है कि मैं उस पर बैठता हूँ और उसको स्ट्रैप, मतलब उसकी जो जिप है वो बंद करता हूँ. ओके, ain't you going to put the boots in? Said Harris, and I looked round and found I had forgotten them.
दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। अब जैसे ही मैं बैग पैक करके बंद करता हूँ तो हैरिस जो है वो क्या बोलता है कि आर यू नॉट गोइंग टू पुट योर बूट्स इन, मतलब तुम्हें अपने बूट्स जो है, शूज जो है वो पैक नहीं करने हैं। फिर मैं इधर उधर देखता हूँ एंड देन आई रियलाइज कि मैं अपने बूट्स जो है वो पैक करना भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. And George laughed one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. ठीक है? Now अब वो कहता है कि that is just like Harris. वो ऐसा ही है। इतनी देर से जब मैं पैक कर रहा था बैग, जब मैंने बंद किया, जब तक मैं बंद कर रहा था तब तक उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही मैंने बैग बंद किया और जैसे ही मैंने उसको स्ट्रैप किया तब जाके वो बोलता है कि तुम्हें अपने बूट्स जो है वो पैक नहीं करने। और जॉर्ज जो है वो बड़े जोर जोर से हंसने लग जाता है। ठीक है, उसकी जो सेंसलेस लाफ है ऑब्वियसली, ठीक है, हमारे साथ में भी कई बार ऐसा होता है किसी फ्रेंड को अगर हम इरिटेट कर रहे होते हैं तो दूसरा फ्रेंड हंस रहा होता है, ठीक है, तो वो बड़े जोर जोर से हंसने लग जाता है। एंड दैट डू मेक मी वाइल्ड। और ये सारी चीजें डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। ठीक है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ। क्लियर? Next is, I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Finally, I opened the bag again, क्योंकि मैं अपने boots pack करना भूल गया था. Okay. So I opened the bag again. मैं अपने boots जो है वो अंदर रखता हूँ and फिर जैसे ही मैं उसको close करने वाला होता हूँ, horrible idea occurred me. And what was that horrible idea? Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. ठीक है, फिर उसको ये चीज़ realize होती है कि भाई मैंने मेरा टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है. So he said कि I don't know कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन हमेशा मेरे साथ में ऐसा, ये सबके साथ में होता है. ठीक है, हम लोगों के साथ में भी होता है. हम जब कहीं जा रहे होते हैं तो सबसे कॉमन चीज़ जो हम ले जाना भूल जाते हैं या पैक करना भूल जाते हैं वो क्या होता है? हमारा टूथब्रश होता है. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. ठीक है, मेरा टूथब्रश जो होता है that is the thing always that haunts me. ठीक है, that haunts me as in that kept me in trouble. यहाँ पे haunts का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे हमेशा डराता है. It means me due to which I was in trouble. ठीक है, so my toothbrush was the thing जिसकी वजह से मैं हमेशा it repeatedly gave me trouble. Okay, because the thing is and makes my life a misery, और मेरी जो life है उसको एक problem misery बना के रख देता है. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. अब now he was saying कि generally मेरे साथ में होता क्या है, कभी भी अगर मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा होता हूँ तो मेरे साथ में क्या होता है कि आई ड्रेम्ट कि मेरे को ऐसा ड्रीम आता है कि मैंने अपना टूथब्रश जो है वो पैक करना भूल गया हूँ एंड आई वोक अप इन कोल्ड पर्सपायरेशन. पर्सपायरेशन का मतलब होता है स्वेट. ठीक है, जब कभी भी हम सो रहे होते हैं और हमें कोई डरावना सपना आता है तो हम ऐसे पसीने पसीने होके उठते हैं. ठीक है, सो आई वोक अप इन कोल्ड पर्सपायरेशन एंड फिर मैं अपने बेड से उठता हूँ, फिर अपने टूथब्रश को ढूंढने लगता हूँ इधर उधर. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. ठीक है, और फिर क्या होता है, मैंने क्योंकि रात को एकदम से मैंने उठकर उसको पैक कर दिया था, फिर इन द मॉर्निंग जब मुझे टूथब्रश यूज करना होता है, जब मुझे ब्रश करना होता है तो मैं कोई रियलाइज होता है कि अरे मैं तो पैक कर दिया है, मैं भूल गया हूँ. ठीक है, and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my handkerchief. ठीक है, so he was just describing, यहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम के बारे में नहीं बता रहा, यहाँ पे ये बता रहा है कि नॉर्मली टूथब्रश के साथ में मेरा सिनेरियो होता क्या है. ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि मैं सो रहा हूँ, मुझे ऐसा सपना आता है कि मैं अपना टूथब्रश पैक करना भूल गया, फिर मैं उठता हूँ, ठीक है, उसको ढूंढने लगता हूँ, फिर उसको पैक कर देता हूँ. अब जब मॉर्निंग में मैं उठता हूँ तो मेरे को ये रियलाइज होता है कि मैंने उसको यूज करने से पहले पैक कर दिया है, फिर आई हैड टू अनपैक अगेन, आई यूज इट. ठीक है, मतलब ऐसा I use it and then I repack and I forgot to pack my toothbrush. So toothbrush was the last, मतलब at the last moment it was the thing कि मैं फटाफट से भगता हुआ, जब मैं स्टेशन के लिए निकल रहा होता हूँ भगता हुआ जाता हूँ और उसको अपने हैंकरचीफ में रैप कर लेकर आता हूँ. This was the case with me generally. Okay. Now यहाँ पे again he is talking about present while he was packing. यहाँ पे वापस वो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है. ये ऊपर टूथब्रश का तो वो इंसिडेंट बता रहा था कि जनरली मेरे साथ में ऐसा होता है. Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course,
I could not find it. ठीक है, सो बोलता है कि of course I had to think every mortal thing. Mortal thing means every ordinary thing. ठीक है, हर छोटी से छोटी चीज मुझे इधर उधर करके देखनी पड़ती है कि मैंने मेरा टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है, एंड ऑफ कोर्स मुझे वो नहीं मिलता. I rummaged the things up into much the same state. Now I rummaged the things यानी I searched. Okay, I searched in a hurried or careless way. मैं हर एक छोटी से छोटी चीज को मैं उसको ढूंढ रहा होता हूँ इधर उधर. मैं अपने टूथब्रश को ढूंढ रहा होता हूँ. ठीक है, सो लुक हेयर इज द पिक्चर कि जब मैं अपने टूथब्रश को ढूंढ रहा हूँ तो मेरे जो बैग है उसकी सिचुएशन बेसिकली ऐसी होती है कि हर तरफ से मेरा बैग जो है वो फैल गया होता है, लेकिन मेरे को मेरा टूथब्रश जो है वो नहीं मिल रहा होता. ठीक है, so I must have been मतलब it must have been before the world was created and when chaos reigned. ठीक है, तो I rummaged everything. मैं इधर उधर हर चीज में सर्च करे जा रहा हूँ. एवरी मॉर्टल थिंग आई वाज सर्चिंग, एवरी ऑर्डिनरी थिंग आई वाज सर्चिंग. इधर उधर सारा सामान करके मैं अपने टूथब्रश को ढूंढता हूँ. फाइनली क्या होता है, केओस रेन. केओस यानी हर जगह क्या होता है, सारा सामान जो है वो फैल गया होता है. एंड केओस का बेसिक मीनिंग होता है कंफ्यूजन. रेन मीन्स विन. तो हर जगह अब क्या है, कंफ्यूजन है, क्योंकि सारा सामान जो है वो फैल गया है. ठीक है, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. अब obviously जब मैं अपना टूथब्रश ढूंढ रहा होता हूँ तो मुझे जॉर्ज का और हैरिस का करीबन 18 टाइम्स मिल गया होता है, लेकिन मुझे मेरा नहीं मिलता. I put the things back one by one and held everything and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. ठीक है, अब क्या होता है, फाइनली मैं हर एक चीज को, एक एक छोटी से छोटी चीज को उठा के रख रहा होता हूँ. एंड आई वाज जस्ट शेकिंग एवरीथिंग कि कहीं उसमें ना चला गया हो. फाइनली मुझे मेरा जो टूथब्रश है वो कहाँ मिलता है, मेरे एक बूट के अंदर. देन आई रीपैक्ड वंस मोर. ठीक है, मैं वापस से पैकिंग करता हूँ. ठीक है, when I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or out, whether it wasn't. I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. ठीक है, फाइनली जब मैं पैकिंग खत्म करता हूँ तो जॉर्ज फिर से मुझसे पूछता है, पहले हैरिस ने पूछा था, जॉर्ज पूछता है कि क्या तुमने सोप पैक किया है या नहीं किया है. देन आई सेड कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने सोप पैक किया है या नहीं किया है, एंड आई डिडंट केयर. ओके, फाइनली आई स्लैम्ड द बैग. स्लैम्ड यानी ऐसे झटके से हम बंद करते हैं. आई स्लैम्ड द बैग, आई स्ट्रैप्ड इट. देन आई फाउंड कि मैंने अपना जो स्पेक्टिकल्स हैं वो मैंने अंदर पैक कर दिए हैं. अब जिसका आई साइट वीक होता है उसके लिए स्पेक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, सो मैंने अपने स्पेक्टिकल्स जो है वो अंदर पैक कर दिए हैं और मेरे को डेफिनेटली चाहिए होंगे. फिर मैं अंदर वापस से खोलता हूँ, वापस से बंद करता हूँ. It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. Finally मेरा जो पैकिंग होता है वो रात में 10 o'clock 10:05 पे खत्म होता है. अब क्या बचे होते हैं, now we are left with the hampers. Hampers as in the food baskets यहाँ पे. ठीक है, जो baskets होते हैं जिसमें हम food items रखते हैं, those are the hampers. अब कपड़ों की, शूज की, बाकी सारी चीजों की जो पैकिंग है वो तो हो गई है. अब क्या बचा है, नाउ वी हैव टू पैक द फूड आइटम्स. ओके, नेक्स्ट इज Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had to go. ठीक है, अब क्या होता है, हैरिस ये सजेस्ट करता है कि भाई इट्स लेस देन 12 आवर्स. अब 12 घंटे से भी कम का टाइम बचा है हमें निकलने में, तो बेटर ये होगा कि हैम्पर्स जो है वो मैं और जॉर्ज कर लें. अब इट वॉज अ टॉन्ट. ठीक है, एक्चुअली हैरिस जो है वो जेरोम के ऊपर, जो नरेटर है उसके ऊपर टॉन्ट कर रहा होता है कि तुमने इतना बैग पैक करने में इतना देर लगा दिया, अभी आप हैम्पर्स पैक करोगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा, और हमारे पास में 12 आवर्स से भी कम का टाइम है निकलने में, तो बेटर है हम लोग कर लें. तो ठीक है, आई एक्सेप्टेड द थिंग. They began in a light-hearted spirit and evidently intended to show me how to do it. And they began in a very light-hearted spirit. Light-hearted का मतलब होता है very happily. वो बड़े आराम से वो हैम्पर्स की जो पैकिंग है वो स्टार्ट करते हैं. एंड दे इंटेंडेड टू शो कि हम, मेरे को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो अब हम बताते हैं पैकिंग होती कैसे. ओके, I made no comment. I only waited, with the exception of George Harris is the worst packer in this world. And I looked at the piles of plates, cups, kettles and bottles
and jars and pies and stoves, cakes and tomatoes, etc. And felt that the thing would soon become exciting. ठीक है, अब I only waited. I made no comment. मैं कोई comment नहीं करता उन पे. I was just waiting क्योंकि मुझे ये चीज़ पता होती है कि जॉर्ज और हैरिस जो है दे आर द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. फिर क्या होता है, जो सामान पड़ा हुआ है यानी जो सामान लेके जाना है उनका जो इकट्ठे होके पड़े हुए होते हैं, आई लुक एट द पाइल्स जिसमें प्लेट्स होती हैं, कप्स होते हैं, केटल्स हैं, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव्स, केक्स हैं, टमेटोज हैं और बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, एंड आई फेल्ट दैट नाउ द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग. अब डेफिनेटली थोड़ा मजा आने वाला है, या ये लोग जिस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो होने वाला है. इट डिड. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. ठीक है, now it did. It did as in yes. Something exciting had happened. Now they started with breaking a cup. ठीक है, जैसे ही वो पैकिंग करना स्टार्ट करते हो सबसे पहले तो एक कप टूटता है. That was the first thing. उसके बाद में they did that just to show you what they could do and to get you interested. अब ये ऐसा क्यों करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं. डेफिनेटली जिसने स्टार्टिंग ही किसी को चीज़ को तोड़ने से करी है तो आगे क्या होने वाला है सोच लो. ओके, then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. फिर हैरिस क्या करता है, वो स्ट्रॉबेरी जैम का जो जार है, ठीक है, अब स्ट्रॉबेरी जैम का जार जो है वो टमेटो के ऊपर रख देता है. टमेटोज के ऊपर अगर आप भारी चीज रखोगे तो वो डेफिनेटली स्क्वैश हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, डेफिनेटली खराब हो जाते हैं. एंड दे हैड टू पिक आउट द टमेटो विद अ टीस्पून. ठीक है, उनको टीस्पून से उसको बाहर निकालना पड़ता है. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर and sat on the edge of the table and watched them. ठीक है, now then Harris trod on the butter. Trod on का मतलब stepped on the butter. ठीक है, ओ ठीक है. फिर क्या करता है कि हैरिस जो है वो बटर पे पैर रख देता है. ओके, नाउ मैं कुछ भी नहीं बोलता, बट ऐसा होता है कि मैं ना उठ के वहां से टेबल की एज पे आके बैठ जाता हूँ, टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पे आके बैठ जाता हूँ और उनको देख रहा होता हूँ. देखो, इट इज गिवन हियर इन द पिक्चर. ठीक है, जैसा ये हो रहा होता है यहाँ पे जॉर्ज जो है वो क्या कर रहा है, पैकिंग कर रहा है. हैरिस जो है इट ट्रॉड ऑन द बटर, हियर इट इज द बटर, बटर पे पैर रख देता है. नाउ आई वाज एक्चुअली केम ऑन द एज ऑफ द I came on the edge of the what? I came on the edge of the table and I was feeling that something exciting was about to happen. Clear? One second. Next is, yeah, it irritated them. Now the thing was defining, it irritated them more than anything I could have said. अब actually होता क्या है कि मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं बोलता उससे भी ज्यादा वो चीज जो है उन्हें इरिटेट कर देती है. ठीक है, क्योंकि I felt that it made them nervous and excited and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smash the pies in. Now actually जब मैं बैठ के उनको देख रहा होता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं. ठीक है, नर्वस भी होते हैं प्लस एक्साइटेड भी होते हैं. दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन देयर इरिटेशन, क्योंकि मैं कुछ बोल भी नहीं रहा, ठीक है, प्लस उनकी हरकतों को देख भी रहा हूँ. राइट, नाउ दे थिंक्स व्हाट, दे स्टेप्ड ऑन द थिंग्स. जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं तो वो कुछ चीज़ों के ऊपर पैर रख देते हैं. फिर उसके बाद जब चीज़ें होती हैं उनको साइड में रखने, मतलब वो पीछे रख देते हैं. अब जब वो चीज़ें उनको पैक करनी होती है तो फाइनली वो उनको मिलती नहीं है. सामने पड़ी हुई तो आपको याद रहेगा, ठीक है, उनको मिलती नहीं है. एंड देन दे डिड व्हाट, कि पाइज जो है उनको वो बॉटम में पैक कर देंगे. अगेन पाइज जो है वो लाइट चीज़ें होती हैं, पाए को वो नीचे पैक कर देंगे और उसके ऊपर जो है वो हैवी थिंग्स पैक कर देंगे. जैसे उन्होंने टमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का बॉटल रख दिया था वैसे ही. और फिर क्या होता है कि पाइज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो स्मैश्ड हो जाती हैं. ठीक है, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग. एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ टू men do more than 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. ठीक है, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, यानी सॉल्ट का अपसेट का मतलब होता है इधर उधर फैला देते हैं.
ठीक है, मतलब जो सॉल्ट है वो हर चीज के ऊपर फैल गया है, तो दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। और अगर हम बटर के बारे में बात करें कि बटर का क्या हुआ, आप अगर सोच रहे हो ये कि बटर का क्या हुआ, तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में 2 लड़कों को या 2 आदमियों को इतना 1 and 2 पेन्स वर्थ ऑफ बटर, यानी पेन्स यानी यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो डिफाइन कर रखी है कि इतने छोटे से क्वांटिटी के लिए, छोटे से क्वांटिटी ऑफ बटर के लिए दोनों इंसान को इतना परेशान होते हैं, लड़ते हुए नहीं देखा है जितना ये दोनों कर रहे थे। आफ्टर George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle। ठीक है, अब इनिशियली होता क्या है, ये चीज स्टार्ट कैसे होती है कि जॉर्ज जो है वो बटर पे पैर रख देता है। ठीक है, अब जॉर्ज जो है वो क्या करता है कि वो अपने स्लिपर से जब उसको निकालता है तो वो दोनों जो है उसको एक केटल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट। जो केटल, वो बटर जो होता है वो केटल के अंदर जा नहीं रहा और केटल के अंदर चीज जो है वो बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, नाउ they did scrape it out at last and put it down on a chair। फाइनली वो क्या करते हैं कि भाई कैसे ना कैसे कर कर उसको निकालते हैं जितना अंदर गया होता है। ठीक है, कैसे ना कैसे कर कर उसको निकालते हैं और उसको चेयर पे रख देते हैं। ठीक है, and Harris sat on it and it stuck to him and they went looking for it all over the room। फिर क्या होता है, बटर को उन्होंने वहां से निकाल के चेयर पे रख दिया, हैरिस जो है वो उस पे बैठ जाता है और वो उसके बैक पे चिपक जाता है। ठीक है, फिर वो लोग पूरे रूम में ढूंढे जा रहे हैं कि बटर कहाँ गया, बटर कहाँ गया, उनको कहीं नहीं मिल रहा। I'll take my oath, I put it down on that chair and said George staring at the empty seat। जॉर्ज कहता है कि मैं किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने जो बटर है उसको चेयर पे रखा था, आई डोंट नो ये कहाँ गया। ठीक है, अब एम्प्टी सीट को देखते हुए कह रहा है कि आई डोंट नो, मैंने तो यहीं रखा था, आई स्वेयर ऑन एनीवन, आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ एंड नॉट अ मिनट अगो सेड हैरिस। और हैरिस बोलता है कि हाँ हाँ, 1 मिनट भी नहीं हुआ और अभी मैंने तुम्हें वहां पे देखा था, मतलब तुम्हें बटर जो है वो रखते हुए देखा था, कहाँ गया। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट and then they met again in the center and stared at one another। फिर वो पूरे रूम में इधर उधर घूम रहे होते हैं, फाइनली दोनों एक ही जगह आके टकराते हैं सेंटर में और बोलते हैं कि अरे बटर का है, मिला क्या किसी को। Most extraordinary thing I ever heard of said George, so mysterious said Harris। ठीक है, जॉर्ज बोलता है कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई, बटर गया कहाँ। हैरिस बोलता है कि yes it is so mysterious, कहाँ गया। Then George got round at the back of the Harris and saw it। Why here it is all the time, he exclaimed indignantly। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर जॉर्ज जो है he went round, मतलब इस लाइक कि वो हैरिस के पीछे जाके बोलता है कि अरे ये यहाँ पे था पूरे टाइम तक और पता नहीं कहाँ हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। Where cried Harris spinning around। अब हैरिस जो है जैसे अपन पीछे देखते हैं कि अरे कहाँ है, तो वो स्पिन होते हुए जैसे डॉग्स एंड कैट्स स्पिन होते हैं, देखते हैं कहाँ है। Stand still, can't you, roared George flying after him and they got it off and packed it in the teapot। ठीक है, फाइनली क्या होता है कि जॉर्ज बोलता है कि सीधे खड़े रह सकते हो, 2 मिनट सीधे खड़े रहो। फिर वो बटर को निकालता है, फाइनली वो किस में पैक करते हैं उसको, एक टी पॉट में पैक करते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द टर्न ऑफ Montmorency। Montmorency was in it all of course। Montmorency कौन है? Montmorency is a dog। Montmorency is the name of a dog और ये जेरोम का डॉग है, यहाँ पे तो ऐसा गिवन है। ठीक है, so Montmorency is Jerome's dog। Now Montmorency was it in all of course। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at। अब Montmorency का जो एम्बिशन है अपनी लाइफ में वो ये है कि किसी ना किसी के रास्ते में आना, किसी ना किसी का काम खराब करना एंड बी स्वर्न एट। बी स्वर्न एट एज इन जब तक उसको डांट नहीं पड़ेगी तब तक उसका काम नहीं चलेगा। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted। So here it is given, if he can squirm in everywhere where he particularly is not wanted, मतलब इस लाइक कि जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जब तक वो नहीं आएगा, मतलब ऐसे कि तब तक उसका काम नहीं चलेगा। मतलब Montmorency की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम अगर पैकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे वो नहीं आना चाहिए, बट इट इज़ नॉट द केस, वहाँ पे वो ज़रूर होगा। क्लियर? और जब तक वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा, लोगों को परेशान नहीं करेगा, ठीक है, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड,
देन ही फील्स हिज डे हैड नॉट बीन वेस्टेड. अगर उसने ऐसा कर लिया तब उसको फाइनली रियलाइज होता है कि चलो मेरा दिन जो है वो बर्बाद तो नहीं हुआ. देखो ये रहा मॉन्टमोरेंसी, ही इज स्टेप्ड ऑन द, मतलब ही स्टेप्ड ऑन द हैम्पर्स, और यहाँ पे जॉर्ज है या कोई भी है, जब तक उसको डांटेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलता. ठीक है. हैरिस एक्चुअली to get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. So the thing is to get somebody to stumble over him, कोई ना कोई चाहिए जो उसके पीछे भागे, उसको डांटता रहे और उसको कर्स करे. यहाँ पे कर्स करने का ये मतलब है स्कोल्ड. हम ऐसा होता है कि जब किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं तो हियर कर्स मीन्स स्कोल्ड. ठीक है. बाकी कर्स मीन्स हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो ही नीड्स एवरी पर्सन, मतलब ही नीड्स अ पर्सन ऑलवेज टू स्कोल्ड हिम. ओके, वो उसका हाईएस्ट एम है. एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल. और व्हेन ही अकम्प्लिश दीज थिंग्स, मतलब वो लोगों को परेशान कर ले, न्यूसेंस क्रिएट कर दे या इधर उधर चीजें फैला दे. अब अगर वो ऐसा हो कर लेता है तो उसका जो कंसीट होता है, ठीक है, वो that is unbearable. Conceit as in, मतलब it's like he is like proud of himself कि finally my day has been successfully completed. Okay. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out to their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. ठीक है. अब क्या होता है कि वो आता है और इट्स लाइक ही सैट ऑन द थिंग्स, चीज़ों के ऊपर बैठ जाता है. ठीक है. और जब उन चीज़ों को पैक करने की ज़रूरत होती है और हैरिस और जॉर्ज जो है अपना हाथ बढ़ाते हैं. फॉर एग्जांपल हम नीचे बैठ के चीज़ें पैक कर रहे हैं, आपने इधर उधर पैकिंग सामान जो है वो बिखेर रखा है, और मॉन्टमोरेंसी जो है वो वहाँ पे चीज़ों के ऊपर आकर बैठ जाता है. अब जब हम हाथों से ऐसे सर्च करते हैं कि कहाँ है ये चीज़, मैंने तो ये रखी थी, तो इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज ऑलवेज, जो उनके हाथ में आती है, मॉन्टमोरेंसी की नोज. ठीक है, वो हमेशा हाथ में आती है. ठीक है. Next is he put his leg into the jam and he worried the teaspoons. ठीक है. वो क्या करता है, वो अपना जो लेग है वो जैम की बॉटल में डाल देता है. worried the teaspoons, worried यानी again disturbed, और इधर उधर फैला देता है teaspoons को. And he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the fry pan. फिर क्या होता है कि it's like he pretended कि जो lemons जो हैं वो rats हैं. अगर आपने कभी किसी के घर में पेट है, जैसे मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, जो लेमन्स अगर आप देखोगे ना बॉल जैसे, तो वो डॉग्स को ऐसा लगता है कि दोज आर लाइक थिंग्स टू बी प्लेड, राइट. तो यहाँ पे मॉन्टमोरेंसी को ऐसा लगता है कि लेमन्स जो है वो रैट्स है, उनके पीछे पीछे भागकर ही किल्ड 3 ऑफ द लेमन्स. और फिर क्या होता है, फाइनली इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं जॉर्ज और हैरिस कि हैरिस जो है वो एक फ्राई पैन लेकर उसके पीछे भागता है. जब तक उसको डांटेगा नहीं तब तक उसका काम नहीं चलेगा. हैरिस said I encouraged him. अब हैरिस जो है वो बोलता है, किससे? I यहाँ पे कौन है? जेरोम. ठीक है. तो हैरिस जो है वो जेरोम से बोलता है कि he encouraged मॉन्टमोरेंसी, मतलब मैं उसका बहुत ज्यादा, मैंने उसको बिगाड़ रखा है. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. मैं definitely उसको encourage नहीं करता. और उस a dog like him, उस person, मतलब उस मॉन्टमोरेंसी के तरह का जो डॉग है उसको एनकरेजमेंट की जरूरत है ही नहीं. ठीक है. इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम एंड दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट. इट इज द नेचुरल ओरिजिनल सिन जिसके साथ में उसने बर्थ लिया है और उसको ये सारी चीजें करनी है. हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि जो डॉग्स होते हैं, पपीज होते हैं, वो शैतानियां करते ही करते हैं, तो उसके साथ में भी ऐसा ही है. ठीक है. The packing was done at 12:50 and Harris sat on big hamper and said he hoped nothing would be found broken. Finally हमारी जो पैकिंग होती है हैम्पर्स की, ठीक है, वो 12:50 अराउंड पैक होती है, अराउंड 1 o'clock, राइट. एंड हैरिस जो है वो एक बड़े से हैम्पर पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि काश कुछ टूटा ना हो, राइट. जॉर्ज said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. ठीक है. अब जॉर्ज बोलता है कि ठीक है, अब अगर कुछ भी टूटा है तो टूटने दो, आई डोंट केयर. विद विच रिफ्लेक्शन का यहाँ मतलब है विद अ थॉट, कि ठीक है यार, हम अपने आप को कंफर्ट करने के लिए, अब हमारी हिम्मत नहीं है, हम अपने आप को कंफर्ट करने के लिए ये बोल रहे हैं कि ठीक है टूटा है तो लेट इट बी. ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड. वी वर ऑल रेडी फॉर बेड. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. अब वो एक और चीज बोलता है कि we are ready for bed. We are ready for bed as in
वी आर रेडी टू स्लीप, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें निकलना है सुबह। और हैरिस जो है उस रात को हमारे साथ में ही रहने वाला होता है, एंड फिर हम अपस्टेयर्स चले जाते हैं, ठीक है, मतलब हम ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। We tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said, "Do you prefer the inside or outside, Jay?" ठीक है, now we tossed for beds, ठीक है, किधर सोना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अंदर, मतलब ऐसा कि वॉल के पास सोना है या तीनों जने सो रहे हैं तो बीच में किसको सोना है, ऐसे वाली चीजें जैसे हम करते हैं ना डिस्कशन। तो we tossed for bed and he asked me, "Do you prefer the inside or outside, Jay?" यहाँ पे Jay कौन है, जेरोम, ठीक है। तो वो पूछता है कि डू यू प्रेफर इनसाइड और आउटसाइड। नाउ इट हैज टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज इफ द बेड इज नियर द वॉल, so do you prefer the inside as in want to sleep beside the wall or in the corner? Secondly, if all of three were sleeping, so he was asking, do you want to sleep in the middle of the two person or not? So he was just asking what would you prefer, inside or outside the bed. I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. George said, "What time shall I wake you, fellows?" ठीक है, अब finally मैं बोलता हूँ कि I prefer inside, तो बोलता है कि it was weird. अब George finally हमसे पूछता है कि what time shall I wake you, fellows? Harris said 7. I said no, 6 because I wanted to write some letters. अब George पूछता है कितनी बजे उठा रहे हैं तुम लोगों को, तो हैरिस बोलता है 7 o'clock. मैं बोलता हूँ कि नहीं 6 because I wanted to write some letters, as in I wanted to write some letters as in कुछ बिल्स वगैरह हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेज या उन लोगों को देने हैं, तो आई नीड टू राइट सम इंस्ट्रक्शंस. हैरिस सेड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट. Harris and I had a bit of a row over it, but at last split the difference and said 6:30. Wake us at 6:30, George, we said. Finally हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, फाइनली वी डिसाइडेड कि नहीं, ना मेरी ना तेरी, हम लोग बीच का 6:30 अराउंड डिफाइन कर लेते हैं. तो बोलते हैं कि हमें 6:30 उठा देना जॉर्ज. George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. जॉर्ज कोई आंसर नहीं देता और हम जब उसको देखते हैं तो वो ऑलरेडी सो चुका होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने थक चुके होते हैं. सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल into it on getting up in the morning and went to bed ourselves. ठीक है, so we placed the bath. अब again place the bath as in ready the things, ताकि सुबह उठ के फटाफट से हम लोग रेडी हो जाएं. सेकेंडली इन अ वेरी ह्यूमरस वे प्लेस द बाथ एज इन जॉर्ज जैसे कॉर्नर में सो रहा होता है तो हम साइड में बकेट या कुछ रख देते ताकि वो जैसे ही सुबह उठे एंड ही टम्बल इट ओवर दैट, ठीक है, टम्बल इनटू इट. और फाइनली वी वेंट टू बेड, वी स्लेप्ट. ओके, so this was the chapter all about. As I told you, it was written by Jerome K. Jerome and it is an extract from a book, Three Men in a Boat. It is a very interesting and humorous story. You can read the full novel and you can also watch the movie if you want. There is a movie on it, right? So this was the chapter all about. There are some humorous incidents जो हम relate कर सकते हैं जब हम packing कर रहे होते हैं. This was the chapter all about packing. Thank you.